Now I am starting A2 syllabus, and now for A2 chemistry, I'm starting with chemical energetics, and definitely we already discussed the points behind AS syllabus related to chemical energetics. ये वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम उसको रिकॉल कर चुके हैं. Now in our A2 syllabus, let me start with the first term before I go to the basic definition of. Anyone can give me an idea about a term lattice? What do you know about lattice? What is mean by lattice? Anyone can answer? Please unmute your mic and give the answer. Message. Complex. Okay. Anything else? What do you know about the lattice? देखिए कितनी basic term है. आप नाम सुनते रहे हैं lattice का, but no one is able to define properly. Okay. Someone said structure or type of structure, but still we are not close to the answer. Lattice is a structure which repeats in p dimension. Yes, Haris Hussain. The structure which repeats in 3 dimension. जैसे आप एक कमरा बनाते हैं ना, कमरे के अंदर आपको क्या करना होता है, आप ईंटों को जोड़ते हैं, तो यू कैन कनेक्ट, और फिर वो एक बेसिक स्केलेटन, एक कमरे से दूसरा, तीसरा, चौथा, और आपस में वो कनेक्ट होकर आप एक पूरा घर बना लेते हैं. So similarly, when we talk about lattice structure, so it is a structure which repeats in 3 dimension. या आप इसको कह सकते हैं a basic unit which repeats in 3 dimension. हम उस structure को lattice structure कहते हैं. The structure which repeats in 3 dimension. For example, if you know, this is a lattice, and if you remember, this lattice is called cubic in shape, and every corner of a cube, एक को मैं रेड से मार्क कर रहा हूं और एक को मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये एक आयोनिक लैटिस है. दिस इज एन आयोनिक लैटिस. And why it is ionic lattice? Because you see, there is one red and other green. Red and green. So there are 2 different ions, or there are 2 different particles. Now they are repeating in 3 dimension.
अब ये ऐसा ही क्यूब इससे कनेक्ट होगा, इसके ऊपर भी ऐसा ही क्यूब होगा, इसके नीचे भी ऐसा ही क्यूब होगा, इसके आगे इसके पीछे। तो बेसिकली आयोनिक लैटिस में क्या होता है कि आयोनिक लैटिस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का कॉम्बिनेशन होता है। So now if this is positive ion, it will be negative, positive, negative, negative को सामने positive, positive के सामने negative. So there is a repetition of basic unit in 3 dimension. उसको हम lattice कहते हैं, and this is an example of ionic lattice where positive ion is surrounded by negative ion and a negative ion is surrounded by a positive ion. So positive negative को surround कर रहा होता है, negative positive को surround कर रहा होता है। ऐसे lattice को हम ionic lattice कहते हैं। And this is an example of a structure showing ionic lattice. तो ये तो बात हो गई lattice की। lattice मुख्तलिफ होते हैं। आयोनिक लैटिस होता है, ये तो मैंने सामने आपके बनाया है। इसके अलावा सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है, जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है, मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर व्हिच वी हैव, बट इन ऑल द केसेस, इन ऑल लैटिस स्ट्रक्चर वी हैव एन अरेंजमेंट ऑफ एटम, molecule or ion which repeats in 3 dimension to make a huge molecular structure, to huge structure, the huge crystalline structure. इस huge crystalline structure को हम कहते हैं लैटिस। होपफुली आपको मेरी बात लैटिस की समझ में आ गई होगी। Now the first term which is a part of A2 syllabus, it is a term known to be lattice energy. आपने ये डेफिनेशन एएस में नहीं पढ़ी, इट्स अ न्यू पार्ट, इट्स अ न्यू डेफिनेशन। लैटिस एनर्जी डेफिनेटली एनर्जी है, और लैटिस का टर्म जब इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मतलब है कि इट इज लैटिस रिलेटेड एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी की ये जो टर्म है, इट इज रिलेटेड टू आयोनिक लैटिस ओनली। The term lattice energy is used for ionic lattice only. And how ionic lattice is formed, वो मैंने आपको बताया previous part में कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। Now because of this attraction, lattice energy is known to be exothermic in nature, because when lattice is formed, when ionic lattice is formed, then positive and negative ions, positive and negative ions attract each other. Positive and negative ions attract each other. अच्छा, अब जो लोग फेमिलियर हैं इस बात से वो ठीक है, जिनको नहीं पता याद रखिएगा, केमिस्ट्री में जब भी अट्रैक्शन होती है एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्म होता है, अट्रैक्शन होती है, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, अट्रैक्शन खत्म करनी है, जहां रिपल्जन होता है, रिपल्जन की वजह से आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अट्रैक्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस and repulsion is always an endothermic process. Repulsion is always an endothermic process. Attraction is always an exothermic process. So basically lattice energy is all about related to formation of ionic lattice.
Now, how we define? There is a 2 or 3 mark definition which we have in the past paper. Number of time ये question आया हुआ है और इसे हम define करते हैं कि it is amount of energy. It is amount of energy produced because it is exothermic in nature. So that's why amount of energy produced when 1 mole of ionic lattice, 1 mole of ionic lattice forms with its देखें, अब आयोनिक लैटिस बनाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन. तो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस फॉर्म्स विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जिनसे वो बने हुए हैं, with its constituent gaseous ions. One mole of ionic lattice forms with its constituent gaseous ions. इस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी. 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से बनेगा. अब शायद ये बात ना समझ में आई हो, मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में शो करता हूं तो होपफुली ज्यादा क्लियर होगा. जैसे if we want to make 1 mole of sodium chloride which is an ionic lattice, ionic lattice हमेशा solid होगा, तो इसके लिए आपको स्टेट सिंबल्स का मसला नहीं है. स्टेट सिंबल मेंशन करना जरूरी है, बट प्रोडक्ट साइड पर बिकॉज ऑफ ionic lattice it is always solid in nature. And 1 mole of ionic compound form, 1 mole of ionic lattice forms with its constituent gaseous ions. Now you see sodium chloride is made up of 2 ions. One is sodium ion, other is chloride ion. So when you write an equation regarding lattice energy, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे Na positive which is a constituent gaseous ion और Cl negative which is again a constituent gaseous ion, लेकिन इनके जो state symbols हैं that should be gaseous in nature. Now this equation represents lattice energy. This equation represents lattice energy of sodium chloride. Lattice energy of sodium chloride. और अगर आप यहां पर लिखेंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो फिर आपको पता है कि इसके साथ नॉट का साइन आ जाएगा. तो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन अगर आप लिखेंगे, तो फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम नॉट का साइन लगाते हैं. तो दिस इज डेल्टा H नॉट LE. दिस LE रिप्रेजेंट्स लेटिस एनर्जी. और कुछ बुक्स में या कुछ पेपर्स के अंदर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा LATT. इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. LE और LATT, ठीक है, ये दोनों सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं लेटिस एनर्जी को. ये दोनों सिंबल्स जो हैं वो लेटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं. तो लेटिस एनर्जी जो है वो क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस फॉर्म विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. इस इक्वेशन को हम कहते हैं, इस एनर्जी को हम कहते हैं लेटिस एनर्जी.
होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन आस्क करें, बिकॉज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अब देखें A2 शुरू हो गया है, नई चीजें आप पढ़ेंगे तो इट टेक्स टाइम। अगर प्रॉब्लम होगा तो अल्टीमेटली आपको फौरन डिस्कस करना चाहिए। जहां मैं पॉज कर रहा हूं वहां पर आप मुझे बताएं कि वॉट एवर द प्रॉब्लम यू हैव उसको हम एड्रेस करें। ओके, होपफुली कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। सपोज आई वांट टू राइट इक्वेशन रिगार्डिंग lattice energy of PbI2. I want to write an equation regarding lattice energy of PbI2. अब होगा यही पेपर में, जैसे पेपर में नॉर्मली फर्स्ट डेफिनेशन आती है कि लेटिस एनर्जी आपने डिफाइन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि राइट एन इक्वेशन टू शो लेटिस एनर्जी ऑफ, कोई भी कंपाउंड का फार्मूला दे देंगे। जैसे ये आ गया कि write an equation to show lattice energy of PbI2. Now, in order to write lattice energy equation, first of all, you should write 1 mole of ionic compound at product side. ये मैंने आपको PbI2 की वैल्यू लिखनी थी lead 2 iodide की, तो मैंने lead 2 iodide जो है वो प्रोडक्ट साइड पे लिख दिया। Now, what are the constituent gaseous ions? यानी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आइंस का मतलब यह है कि ये किससे बना हुआ है? ये दो चीजों से बना हुआ है। क्या क्या बना हुआ है? एक ये बना हुआ है lead 2, it is lead 2 positive ion gaseous, and why it is lead 2 iodide? रीजन ये है कि I पर आप सबको पता है कि I का जो अपना चार्ज है वो -1 है, और I -1 का मतलब ये है कि 2 I यहां पर हैं तो Pb का चार्ज +2 हो जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर आपने 2 लिखना। Now this is an equation showing lattice energy of PbI2. Now try to write down, डेफिनेटली आप शेयर अगर करना चाहें तो शेयर करें, और अगर आप लिखना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, try to write down equation related to lattice energy of barium sulfate. बेरियम सल्फेट की लेटिस एनर्जी की इक्वेशन आपने लिखनी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट बेरियम सल्फेट एट प्रोडक्ट साइड। द कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस आर, बेरियम सल्फेट के कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस क्या क्या होंगे? बेरियम सल्फेट, नाम से पता चल रहा है, बेरियम सल्फेट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में बेरियम आयन, और आपको पता है कि बेरियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, तो इसका चार्ज +2 होगा, तो बेरियम 2 गैसियस आयन, और SO4 2 नेगेटिव आयन, दिस इज सल्फेट 2 आयन। अब यहां पर यूजुअली स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं, अब जैसे कुछ बच्चों ने भेजा है बिल्कुल एंड सल्फेट, बिल्कुल ठीक है, बेरियम एंड सल्फेट। अब कुछ स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, वो ये करते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देते हैं, एंड दैट इज रॉन्ग। तो जिन लोगों ने सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग किया है वो गलत है, बिकॉज यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस चाहिए, और यहाँ जो आयन है बेरियम सल्फेट, यहाँ पर आयन जो है वो बेरियम सल्फेट है जी।
Any question? Okay, now we are taking another example and try to write down an equation regarding aluminium nitrate. Lattice energy of aluminium nitrate.